Good morning, students. Good morning, parents. In today's class, we will learn how do the seasons change. आज के क्लास में हम ये जानेंगे कि seasons यानी कि मौसम कैसे बदलते हैं. Let's see. As always, before we begin, let's learn some new words. GLOBE, globe. AXIS, axis. POLE, pole. EQUATOR, equator. HEMISPHERE, hemisphere. ORBIT, orbit. TILT, tilt. These are your 7 new words that you will learn more about today. Let us begin with globe. Globe क्या होता है? A scaled model of the earth. Scaled मतलब अगर कोई चीज बहुत 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 बड़ी हो तो उसको हम छोटा कैसे करके दिखाएंगे? सारी चीजों को सेम साइज कर रखेंगे या श्रिंक करेंगे? श्रिंक का मतलब है छोटा करना. So everything on that object also we're going to shrink, reduce in size. उसका साइज हम कम करेंगे. जैसे बड़े वाली चीज पे दिखता है वैसे ही छोटे वाली चीज पे दिखेगा. So scaled model of the earth is the globe. How are you going to make your own globe? You are going to take an orange or a lemon. You're going to take a toothpick and you're going to take a marker. You are going to put your toothpick through the orange. Orange का जो bottom होता है, top होता है, उसके ठीक बीच में से आप toothpick को अंदर डालोगे. Okay? And then you're going to draw a line around the middle. उसके middle के पूरा around आप एक line draw करोगे. ये हम क्यों करेंगे? ये देखते हैं. But before that, you are going to draw a big oval on the floor. You're going to put a light or a ball in position A and this will be your sun. Remember हमने पहले क्लास में light use किया था to show the sun. Similarly, in this class also, we will put a light in position A and we will put our orange or our lemon in position B. This is going to be our earth and this is going to be our sun. And what is this showing us? This big oval egg-shaped elliptical thing is the orbit of the earth around the sun. Earth जिस रास्ते पे sun के around जाता है, the path that the earth takes around the sun is called its orbit around the sun. Let's move on. Now, there are many parts of the globe. Globe नहीं तो earth के बहुत सारे parts रहते हैं और ये हम word by word आज जानेंगे. सबसे पहला होता है उसका top जो होता है और bottom जो होता है उसको हम north pole और south pole कहते हैं. ऐसे यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन कनेक्ट करता है ठीक बीचों बीच उसको हम एक्सिस कहते हैं. अभी हमारे मॉडल में जो टूथपिक है वो एक्सिस का काम करेगा. Now, between the north pole and the south pole, exactly in the middle, ठीक center में, there is an imaginary line that goes all the way around the middle of the earth. And what is this imaginary line called? That is splitting the earth into equal halves. This imaginary line is called the equator. It is splitting the earth in two equal halves, so it is called the equator. Now what are these halves called? There is the northern hemisphere and there is the southern hemisphere. Hemisphere matlab kuch, it's nothing too difficult. If I take this lemon and if I cut it in half, then I will have two equal pieces and those two equal pieces will be called hemispheres. कोई ऐसे बॉल के शेप के चीज को अगर हमने हाफ में डिवाइड किया तो उसको हम हेमिस्फीयर ऐसे कहते हैं. Moving on, the path the earth takes around the sun is called the earth's
orbit around the sun. Abhi a orbit is not circular. This is not a circular path. It is egg shaped. नहीं तो elliptical. Okay, ऐसे oval, elliptical, egg shaped path होता है ये, circular नहीं. Why is this important for us to know? Why do we know about the axis and the orbit? This is so that we know that the earth has a tilt. The earth is always, हमेशा earth का एक tilt रहता है जो constant रहता है. साल में से 365 days यानी कि पूरा साल भर earth जैसे sun के around घूमता है वो ऐसे टेढ़े से axis पे घूमता है. ओके हमारा ये एक्सिस अर्थ में सीधा बीचों बीच जाता है, राइट? इट्स कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दैट इज स्ट्रेट. हाउएवर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट, ऑर्बिट अगर ऐसा हो हॉरिजॉन्टल तो एक्सिस ऐसा नहीं है, एक्सिस टेढ़ा है. ठीक है, टेढ़ा को हम क्या कहते हैं? व्हेन द एक्सिस ऑफ समथिंग इज नॉट स्ट्रेट डाउन, इट हैज moved a little bit. This space, ये वाला जो पॉइंट है और हमारा नॉर्थ पोल जो है, इन दोनों के बीच की जो जगह है इसको हम टिल्ट कहते हैं. ओके ये टिल्ट होता है हमारे अर्थ के एक्सिस का विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ्स ऑर्बिट. ऑर्बिट और एक्सिस के बीच में एक टिल्ट रहता है, ये हम देखेंगे. ठीक है, नाउ let's quickly recap. What is this diagram showing us? Here we have the sun, which is not in the center and not in a circular orbit. We have the sun towards one side of an elliptical orbit that the earth follows around the sun. This here is the earth. Now let's try to see where all does the earth go during the year. साल भर में earth कहाँ कहाँ जाता है और उसका असर सीजन्स पर कैसे पड़ता है. पहले मैं आपको समझाऊंगी मॉडल पर, फिर हम देखेंगे डायग्राम में. You will remember that we took an orange or a lemon and we put a stick through it. उसके बीच में से एक टूथपिक डाला हमने, उसके अराउंड एक सर्कल निकाला. Now you will also see that Meera Didi has put one bindi over here. This bindi is showing us India. Okay, this is the North Pole, this is the South Pole, and the Earth is always at a tilt. Okay, ये North Pole देखेंगे, ये South Pole जो है, Earth ऐसे सीधा नहीं रहता, Earth tilted रहता है. तो अब अभी देखते हैं जून में इंडिया क्या करता रहता है. जून में दिस एंटायर पार्ट ऑफ द अर्थ, मेरे राइट हैंड साइड पे जो कोई पार्ट ऑफ द अर्थ है, इस सब को लाइट मिल रहा है. ओके, दिस एंटायर पार्ट इज गेटिंग लाइट. दिस इज द दिस वे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हम सन के बहुत करीब है, हमें मई में, जून में बहुत 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 गर्मी होती है. नाउ this tilt remains the same even before. जब हम अप्रैल या मार्च में रहते हैं तभी ये टिल्ट वैसे ही रहता है. हम थोड़ा थोड़ा पास है, अर्थ गर्म होने लगा है, गर्म होने लगा है, गर्म हुआ सारा पानी इवेपोरेट हो गया, ऊपर जमा हो गया. अभी हम थोड़ा सा दूर जो पहुंच गए कि सारा पानी गिर जाता है. ओके, गिर जाता है मतलब क्या? बारिश हो जाती है. Now you cannot see through here, but I will show you. At this point we are very far away from the sun. हम sun से काफी दूर है, इतना दूर है. ओके, over here यहाँ तक हम गर्म थे. ओके, यहाँ तक, जैसे कि यहाँ तक we are still quite warm. मार्च से लेकर अगस्त या सितंबर तक. फिर अर्थ स्टार्ट्स टू बिकम कोल्ड. अर्थ जैसे जैसे कोल्ड बन जाता है
वैसे हमारा पानी भी, जो एयर में पानी रहता है, यहाँ मानसून में सारा नीचे गिर गया, अभी जमीन में है पानी, जमीन में है, नदियों में है, ओशन में है, ये सारा पानी ठंडा पड़ जाता है। ठंडा जैसे पानी पड़ता है, इवन द प्लांट्स गो टू स्लीप। प्लांट्स देखते हैं कि अभी ये तो हमारे लिए बहुत ठंडा है, धूप नहीं मिल रही है, जमीन में से गर्मी नहीं मिल रही है, इट इज वेरी कोल्ड, we must all go to sleep. So the plants stop growing, trees stop growing. इससे पहले when we are over here, the plants start to notice कि अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है। प्लांट्स को समझ आता है ये। So what do? They drop all their leaves. वो अपने leaves को गिरा देते हैं। जैसे हमारे स्कूल के सामने वो आमंड का ट्री है, उसके सारे leaves पड़ जाते हैं। As we are turning and turning, the tilt remains the same, and by the time we are in December, everything is cold. Everybody is feeling cold. We are in very तेज winter में रहते हैं हम, और bears सो जाते हैं। bears क्या होते हैं? भालू। भालू सो जाते हैं। plants तो anyway सो गए हैं, उन्होंने अपने सारे leaves को गिरा दिया है, वो सो गए हैं। bears भी सो जाते हैं। Then comes February. February तक थोड़ा थोड़ा अभी गर्म होने लगता है। ओके, थोड़ा गर्म होने लगता है, bears सारे जाग जाते हैं, एंड और थोड़ा सा गर्म होने तक all the trees wake up. Trees wake up, flowers start blooming, animals are happy and running around, and this is when the maximum number of fruits and flowers are there in the world between February to April. अभी अप्रैल से लेकर मई तक वापस पूरा गर्म हो जाता है। अभी आप ध्यान में रखोगे, मैंने ये टिल्ट कांस्टेंट रखा। The earth continues to rotate हर रोज हर दिन, all the way through the revolution around the sun, the earth is rotating. रोटेट कर रहा है, ये कभी तो रुका नहीं है। ठीक है, tilt was constant, the axis was like this, okay, the orbit was like this, and we saw what India was doing. India का सन के साथ क्या चल रहा था, ये हमने अभी इस मॉडल में देखा। अभी यही चीज हम डायग्राम में देखेंगे। चलो देखते हैं। At the start of the year, let's say स्कूल का ईयर हम समझेंगे। स्कूल का ईयर begins in June, which is when we are closest to the sun. Okay, we were very very hot over here. सारा पानी evaporate हो चुका था, अर्थ गर्म हो गया था, सारा पानी evaporate हो गया था, और सारा जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स के फॉर्म में जमा हो गया था स्काई में। ओके, इन जून मॉनसून बिगिंस। मॉनसून में क्या होता है, अर्थ थोड़ा सा कूल हो जाता है, जस्ट थोड़ा सा, 1-आधा डिग्री कूल हो जाता है, और सारा पानी बरसता है। ऑल द वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर एंड स्टार्ट्स टू रेन। वाटर वेपर क्या हो जाता है, वो क्लाउड्स में जमा हो जाता है, फिर रेन बन जाता है। दिस हैपेंस बिटवीन जून एंड अगस्त। अगस्त में क्या रहता है, इंडिपेंडेंस डे। अराउंड दिस टाइम धरती इज स्टिल काफी वार्म, अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्मी रहता है, पूरा मार्च से लेकर अगस्त तक। पर अभी इसका हीट, जो गर्मी रहती है, हीट रहती है, वो घटने लगेगा। ओके, अर्थ स्टार्ट्स लूजिंग वार्मथ। ऑटम में भी थोड़ा थोड़ा बारिश हो सकता है, बिकॉज द अर्थ इज लूजिंग वार्मथ। अभी अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कुछ नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस होगा। ठीक है, अभी अक्टूबर में क्या रहता है, दिवाली रहता है। दिवाली के टाइम आप नोटिस करोगे जो लीव्स रहते हैं ट्रीज पर वो गिरने लगेंगे। अक्टूबर में प्री विंटर रहता है, लीव्स स्टार्ट टू फॉल, अर्थ वाज लूजिंग वार्मथ, सो पानी ठंडा पड़ने लगा, लीव्स स्टार्ट टू फॉल, पानी ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, अब सारी धरती ठंडी पड़ गई। In December, the entire earth is the coldest, because do you see how far away from the sun we are?
हम सन से कितने दूर है, इसलिए धरती as in earth is the coldest. Now because it's very cold, leaves have fallen, trees are asleep. Who else goes to sleep? Bears, यानी कि भालू. The bears go to sleep. Plants are already asleep, so they're not going to be growing. Plants तो grow नहीं करते हैं. ये पूरा कहाँ तक चलता है? मिड दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट फरवरी तक. फरवरी के बीचों बीच थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है. अर्थ का टेम्परेचर, बिकॉज वी आर कमिंग अ लिटिल बिट क्लोजर टू द सन, अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बदलता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. एंड बेयर्स को क्या होता है? बेयर्स जाग जाते हैं. उनको समझ आता है कि अभी ठंडी के दिन खत्म हो गए, हम जाग सकते हैं, हम घूम सकते हैं. सो द बेयर्स यानी कि भालू, दे वेक अप. हु एल्स वेक्स अप डू यू थिंक? यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सोया था? प्लांट्स सोए थे. द प्लांट्स आर asleep, the plants are not growing. But when it becomes warm, what happens to the plants? We are both getting warm because we're closer to the sun. We're also getting more light because we're closer to the sun. So the plants are very happy. Plants will start to grow. There are flowers everywhere. पूरा flower से भर जाता है. Okay, this season, what is it called? It is called spring. ओके, मॉनसून, ऑटम यानी कि जहाँ पत्ते पड़ते हैं, लीव्स फॉल. देन विंटर जहाँ ठंडी रहती है. स्प्रिंग जहाँ पे फ्लावर्स ब्लूम. ब्लूम करना मतलब ओपन अप लाइक दिस. द फ्लावर्स ब्लूम इन मार्च. एंड देन व्हाट हैपेंस? बाय अप्रैल हम वापस सन के काफी करीब आ गए हैं. अप्रैल तक फ्लावर्स का ब्लूम होना वगैरह, अर्थ का सेलिब्रेशन टाइम खत्म हो जाता है. एंड इट इज हॉट अगेन. अभी गर्मी बढ़ती है, हमारे समर वेकेशंस शुरू हो जाते हैं. गर्मी जैसे बढ़ती है, सारा पानी फिर से इवेपोरेट होता है और जून में पानी पड़ने लगता है. सो दैट इज हाउ यू गेट समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग and back to summer. This is how our year looks. Although हमारा कैलेंडर ईयर शुरू होता है जनवरी में, जब हम सन से सबसे दूर थे और थोड़ा थोड़ा पास आना शुरू करते हैं. However, the sun का जर्नी begins जून में. सन से हम सबसे ज्यादा करीब कहाँ रहते हैं? जून में. और by हम I mean कौन? इंडिया. ओनली इंडिया I'm talking about. यहाँ पे ये जो रेड डॉट दिख रहा है आपको, सारे अर्थ के पोजीशंस में जो रेड डॉट है वो हमारा नॉर्थ पोल है. द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड लाइक दिस. सेंटर में नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए हमारे जो हेमिस्फीयर को है ना ज्यादा लाइट मिल रहा है. हमारे हेमिस्फीयर को यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी सारा लाइट मिलता है. यहाँ देखो, ज्यादातर सन से दूर जो है एरिया वो बाकी है रेड के अदर साइड पे. यहाँ पे भी वैसे ही है. सन से जो एरिया दूर है वो इस साइड से ज्यादा है. सेम हियर. ये नॉर्थ पोल देखो, नॉर्थ पोल के इस साइड पे ज्यादा जगह है. सो वी आर क्लोज टू द सन, वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ सन. हमारा हाउ टू से sunlight, warmth, all of that is abundant. All of this is happening between April to August, and you know how it continues. Now, let us move ahead. Your homework today is going to be, you are going to copy this diagram in your notebooks. I have given you fill in the blanks. ये आप अपने हिसाब से जैसे आपको समझ आया है वैसे fill करोगे. इस diagram में there are total 10 labels to be filled. Let's take a look at the summary now. The earth rotates around its own axis. Earth अपने खुद के axis के around rotate करता है. The earth revolves around the sun in an elliptical orbit. Yeah? The earth's axis is tilted on the earth's orbit. The earth's axis is tilted on the earth's orbit. Second, the top of the earth is called the North Pole, the bottom of the earth is called the South Pole,
The Earth's axis joins the North Pole and the South Pole. ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. इन दोनों के बीच में जो लाइन जाता है उसको हम एक्सिस कहते हैं. याद रखें, the Earth's axis is not the same thing as the Earth's tilt on its orbit around the sun. अर्थ का ऑर्बिट एक चीज है, अर्थ का एक्सिस एक चीज है और अर्थ का टिल्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, अर्थ का जो टिल्ट रहता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थ्स एक्सिस. ओके, ये जो टिल्ट है, ये वाला जो सीधा लाइन नीचे जा रहा है उसका और एक्सिस के बीच में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, उसको हम टिल्ट कहते हैं. ये टिल्ट मतलब ये जो एम्प्टी जगह है is not the same thing as this line that's going down, right? They're totally different things. Please remember not to get confused with those. Lastly, the equator is an imaginary line that goes around the middle of the earth. Equator, imaginary line going around the middle of the earth. The equator divides the earth into the northern hemisphere and the southern hemisphere. Equator earth को ठीक 2 equal भाग में divide करता है. 2 equal parts it divides the earth into, which is the northern hemisphere and the southern hemisphere. India is in the northern hemisphere. The US is in the northern hemisphere. Australia is in the southern hemisphere. ये देखो, इंडिया यहाँ पे है, US यहाँ पे है. Our friend Australia is in the southern hemisphere. Okay. Now, what is your homework going to be? You're going to fill and submit the Google form that I have sent you. मैंने जो लेमन के साथ एक्टिविटी करके दिखाया वो आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओगे. इसमें आप मुझे क्या क्या चीजें बताओगे? All of the new words that we learned today. ये सारे new words आपको यूज करने हैं in order to show me this activity. ये एक्टिविटी में आप सारे वर्ड्स यूज करके दिखाओगे और आप डायग्राम 1 और डायग्राम 2 ड्रॉ करके दिखाओगे. ड्रॉ करना है, लेबल करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे सिर्फ कॉपी करना है. ठीक है, दिस इज ऑल ऑफ योर होमवर्क टुडे. It will take some time, but it will be fun and I believe in you.